بسم اللہ جناب، سلامت رہیں آپ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں سوئٹزرلینڈ کی، اور آج ہم سوئٹزرلینڈ کے بارے میں وہ تمام باتیں جانیں گے جن سے ہم آج سے پہلے لا علم تھے۔ اس ملک میں آپ پی ایچ ڈی صرف 100 یورو میں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ کی۔ ایسا کیا ہے اس ملک میں جو 5 کروڑ سے زیادہ لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پریزیڈنٹ زرداری کا سوئس اکاؤنٹ کیا اسی ملک میں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ پوری دنیا ایٹم بم سے تباہ ہو جائے گی، لیکن سوئٹزرلینڈ کے لوگ بچ جائیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ملک جہاں سب سے زیادہ لوگ ہنی مون کے لیے جاتے ہیں، اور آخر میں آپ کو اس ملک کے حیران کر دینے والے خوبصورت مقامات دکھائیں گے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ملک میں جانے کا ضرور سوچیں گے۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں اب نکلتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے ایک خوبصورت سفر پر۔ اس ملک کا آفیشل نام سوئس کانفیڈریشن ہے۔ ملک کا 60% حصہ الپس کے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ملک کے اس حصے میں بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں، اور ملک کے دوسری جانب بھی اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی کل آبادی 88 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 102 نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، مطلب اسے کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ دوستو، یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ایک بار آپ یہاں گئے تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ سوئس واچ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ دنیا کی سب سے مہنگی اور سٹائلش گھڑیاں بھی اسی ملک کی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ چاکلیٹ اس ملک میں بنائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ کھائی بھی اسی ملک میں جاتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 41,000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 135ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ملک تو چھوٹا سا ہے، لیکن یورپ میں اکانومی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اسے دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیسٹ بینکنگ سسٹم بھی اسی ملک میں ہے۔ اگر اس کے بارڈر کی بات کریں تو فرانس، جرمنی، اٹلی، پرنسپیلٹی آف لیچٹنسٹائن لگتے ہیں۔ دوستو، یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ ایک یورپی ملک ہے، لیکن یہ ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں بنا ہے۔ البتہ 1999 میں سوئٹزرلینڈ نے یورپی یونین کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے، جس کی مدد سے تجارت میں آسانیاں پیدا ہوئی تھی۔ حال ہی میں 2 اور بھی معاہدے کیے گئے ہیں، جن کا مقصد ملک میں معیشت کے حوالے سے بہتری لانا ہے۔ ملک کا دارالحکومت برن ہے، لیکن سب سے زیادہ فیمس سٹی زیورک ہے۔ سالانہ آمدنی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $92,000 ہے، جو پاکستانی 2 کروڑ 62 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر ہم شہر کا نام لیں تو سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ کا نام آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے، یہ ہم ویڈیو میں آگے آپ کو دکھائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک حصہ 8 ماہ برف کی چادر سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف رنگین پھولوں سے بھری ہوئی وادیاں ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی اکانومی $700 ارب کی ہے، جو دنیا کے پہلے 20 ممالک میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ملک دنیا کے سب سے خوشحال ممالک میں آتا ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی 57 کلومیٹر لمبی سرنگ سوئٹزرلینڈ میں ہی موجود ہے، جو الپس کی پہاڑیوں کے نیچے سے سوئٹزرلینڈ کو اٹلی سے ملاتی ہے۔ زراعت کا شعبہ ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ صنعت کاری میں سوئٹزرلینڈ اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے ریلوے ٹریک کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں جو بھی جاتا ہے ٹرین کا سفر ضرور کرتا ہے۔ اس کا 5% ٹریک پہاڑوں اور گلیشیئر سے گزرتا ہے، جو دیکھنے والوں کے لیے ایک الگ ہی دنیا کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ ٹرین کبھی وادیوں سے گزرتی ہے، کبھی میدانی علاقوں، اور کبھی برفیلے پہاڑوں سے گزرتی ہے۔ ٹرین کے سفر کے لحاظ سے جاپان کے بعد سوئٹزرلینڈ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پورے یورپ کا سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے، جو سمندر سے 4158 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ اس اسٹیشن کا نام جنگ فروچ اسٹیشن ہے، جو یورپ کا سب سے اونچا اسٹیشن ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔ آپ جب بھی جائیں تو سوئٹزرلینڈ کا سوئس پاس لے لیں، تو آپ پورے سوئٹزرلینڈ میں بوٹ، بس، ٹرین، کار سب پر فری سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ قدرت نے جتنی خوبصورتی اس ملک کو دی ہے،
उतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पर भी टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज्म से सालाना 17 बिलियन डॉलर कमाता है और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में आपको एक झील मिल जाएगी। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.25 साल है। जब पैसा हो, कोई परेशानी ना हो, साफ हवा, साफ खाना, तो औसत उम्र तो ज्यादा होगी। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से इस मुल्क में करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। स्विट्जरलैंड घड़ियों और क्लॉक के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। रोलेक्स, पाटेक और दीगर घड़ियों की मशहूर ब्रांड्स स्विट्जरलैंड की ही मलकियत हैं। दीगर शोबों की तरह सियाहत का शोबा भी स्विट्जरलैंड की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, जो आजकल दुनिया के हालात हैं, तीसरी जंग अजीम तो शायद होकर रहेगी और बहुत से मुल्कों के पास एटम बॉम्ब भी मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत से बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं, जहाँ पर 115% मुल्क के लोग जाकर रह सकते हैं। मतलब 15% लोग दूसरे मुल्कों से भी आकर खुद को बचा सकते हैं। बॉलीवुड मूवीज की भी बहुत ज्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को पेरिस के बाद सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोगों में शादी की कोई जल्दी नहीं होती, बल्कि ये देर से शादी करते हैं। ये आम तौर पर 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया के सबसे महंगे तरीन मुल्कों में आता है और क्राइम ना होने के बराबर है। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहद ऐसा मुल्क है जहां 10 बजे के बाद आप बाथरूम नहीं जा सकते। आपके फ्लश की आवाज से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे वॉशरूम बना लिए गए हैं जहां फ्लश की आवाज नहीं आती। यही नहीं, बल्कि रात 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स नहीं आती, ताकि लोगों की नींद खराब ना हो। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव मुल्क का अवार्ड भी स्विट्जरलैंड के पास है? यही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड पिछले 10 साल से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और इस हद तक बिजनेसमैन बन चुके हैं कि बाप बेटे से भी बिजनेस करता है और माँ अपनी बेटी से भी बिजनेस करती है। स्विट्जरलैंड में एक लड़की बैंक से कर्जा लेने गई तो बैंक 4% मुनाफे पर लोन दे रहा था, लेकिन गारंटी बहुत ज्यादा मांग रहा था। लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, कर्जा मैं दे देती हूँ, लेकिन 5% मुनाफे पर दूंगी, क्योंकि बैंक 4% के साथ गारंटी मांग रहा है और मैं बगैर गारंटी के कर्जा दे रही हूँ। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहाँ के लोग कारोबारी हैं। स्विट्जरलैंड एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन स्विट्जरलैंड की मजहबी तंजीमों की तरफ से मुसलमानों को मसाजिद बनाने पर पाबंदी आयद है। उनका कहना है कि मुसलमान मसाजिद बनाएं, लेकिन मसाजिद पर मीनार तामीर ना करें, क्योंकि ये मुसलमानों के मजहब की अक्कासी करता है। ये मुल्क महंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। टीचर की सैलरी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कुछ टीचर साल का $1 लाख तक कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की सैलरी 10,000 स्विस फ्रैंक है। कम से कम सैलरी 3,000 से 2,000 स्विस फ्रैंक तक है। आप इस मुल्क में किसी भी जॉब के लिए आए, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और साथ इसके हुनर भी होना चाहिए। इस मुल्क में रहने का खर्चा 1,000 यूरो तक है, मतलब आप 2,000 यूरो आसानी से बचा सकते हैं। ये मुल्क शेंजियन कंट्री में आता है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है। इस मुल्क में प्लम्बर, शेफ, ड्राइवर, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब बहुत ज्यादा हैं। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 304 रुपए के बराबर है और इंडियन 91 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 3,000 के करीब है, जो ज्यूरिख, बर्न और बैसल में आबाद हैं, जबकि इंडियन 27,000 स्विट्जरलैंड में आबाद हैं।
जो ज्यादातर इंजीनियर, IT और फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं। इस मुल्क में मुसलमानों के 160 से ज्यादा मुस्लिम सेंटर हैं, लेकिन मस्जिद की शक्ल में मीनार बनाने की इजाजत नहीं है। 3 लाख से जायद मुसलमानों की आबादी के लिए पूरे मुल्क में 160 मसाजिद यानी सेंटर कायम हैं, जहां पर मुसलमान नमाजों की अदायगी करते हैं। लेकिन बाकायदा मस्जिद के तौर पर पूरे मुल्क में सिर्फ 3 मसाजिद कायम हैं। 2009 में होने वाले एक रेफरेंडम के बाद कानून में मीनार ना बनाने की तरमीम की गई थी, जिसका मुसलमानों ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। स्विट्जरलैंड की 34% आबादी रोमन कैथोलिक, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 7.2% दूसरे मजहब के लोग और 29% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। अगर स्विट्जरलैंड की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क पर किसी ने कब्जा नहीं किया और ना ही कभी स्विट्जरलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया है। ये मुल्क पिछले 1500 सालों में किसी भी जंग में शामिल नहीं हुए और ना ही किसी मुल्क की हमायत की है। इस इलाके में रहने वाले लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। कहा जाता है इस वक्त 3 कबीले थे जिन्होंने मिलकर सल्तनत बनाई। इस सल्तनत का आगाज 1200 में हुआ। 1648 में यूरोप के कई ममालिक ने स्विट्जरलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1798 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर हमला किया। इस वक्त फ्रांस का हुक्मरान नेपोलियन था। 1815 में स्विट्जरलैंड ने फ्रांस से आजादी हासिल की, लेकिन इस अरसे में होने वाली जंग को स्विट्जरलैंड की गुलामी करार नहीं दिया गया। 1848 में इस मुल्क का आइन वजूद में आया। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क की हमायत नहीं की और न ही जंग में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तो 88 लाख के करीब है, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में सालाना आते हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल सबसे ज्यादा शौक से खेला जाता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की 4 ऑफिशियल जुबानें हैं, लेकिन 63% लोग अरमानी जुबान बोलते हैं, जो जर्मन जुबान से मिलती जुलती है। बर्न मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी 4,41,000 के करीब है। इस शहर की खूबसूरती देखने विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसका ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ओल्ड टाउन के दरमियान से एक दरिया गुजरता है जो बहुत ही खूबसूरत है। आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ 1903 से 1905 तक इसी शहर में रहा। ये घर भी आज इस शहर में मौजूद है। आपने आइंस्टाइन का E=mc² का फार्मूला तो सुना होगा। आइंस्टाइन ने ये फार्मूला भी इसी शहर में बनाया था। मशहूर ज़माना मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्जरलैंड में ही गुजारे थे और स्विट्जरलैंड में ही उसने 25 दिसंबर 1977 को वफात पाई थी। पाकिस्तान में अगर स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट का भी जहन में आता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में 1995 में एक अकाउंट खोला गया, जिसमें $40 मिलियन से $100 मिलियन तक रकम कंपनी से वसूल करके इनके अकाउंट में रखी गई। ये वो कंपनीज थी जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस केस के मुकम्मल तौर पर शवाहिद नहीं मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में ये केस स्विस अकाउंट के नाम से बहुत फेमस है। स्विट्जरलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सोलर प्लेट की मदद से उड़ने वाला हवाई जहाज तैयार कर लिया है। अलबत्ता ये हवाई जहाज अभी साइज में छोटा है। ये हवाई जहाज बिना तेल पानी के, बिना गिरे लगातार 40,000 किलोमीटर का सफर कर चुका है। इस हवाई जहाज को मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर अबू ज़हबी से उड़ाया गया था। कई मुमालिक का सफर करने के बाद फिर इसी जगह पर उतारा गया था। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। इस मुल्क में पढ़ाई पर खर्चा बहुत ही कम आता है। शायद इतने पैसों में आप पाकिस्तान या इंडिया में भी नहीं पढ़ सकते। बैचलर और मास्टर डिग्री करने का खर्चा 400 यूरो से 3000 यूरो तक है और PhD करने का खर्चा सिर्फ 100 यूरो से 900 यूरो तक है। एक जमाना था कि बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती थी।
लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड है। 18वीं सदी ईस्वी तक स्विट्जरलैंड दुनिया के बड़े बड़े इंपोर्टर ममालिक में शुमार होता था, जबकि 20वीं सदी ईस्वी में यह दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर ममालिक में शुमार होता है। स्विट्जरलैंड यूरोप का पहला मुल्क है जिसने 2017 में कीड़े मकोड़ों जैसी खुराक को बेचना जायज करार दिया है। स्विट्जरलैंड ने औरतों को वोट का हक सिर्फ एक बार 1971 में दिया था और फिर 1991 में ये हक दोबारा वापस ले लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2017 में स्वीडन, नेदरलैंड और स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा जदीद ममालिक शुमार हुए हैं। चाइना और चाइना के दीगर हमसाया ममालिक की तरह स्विट्जरलैंड में आज भी कुछ लोग बिल्लियों और कुत्तों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है, जिसकी कुल आबादी 14,32,000 के करीब है। इस शहर के ट्विन टावर, जिन्हें ग्रॉस मॉन्स्टर कहा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हैं। विजिटर्स इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा लेते हैं। आप इन शहरों के अलावा दूसरे सिटीज में भी जा सकते हैं, जिनमें बेसल सिटी, जनेवा सिटी और लोक्रेना सिटी हैं। दोस्तों, इस मुल्क में हर शहर दूसरे शहर से भी ज्यादा खूबसूरत है। आप अगर इस मुल्क में जाएंगे तो वापस जाना ही भूल जाएंगे। सिर्फ उस वक्त वापस जाना याद आएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। ज्यूरिख सिटी को स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इस शहर में लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। बेनहोफस्ट्रास स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ट्रैम के जरिए आप इस पूरे शहर का विजिट आसानी से कर सकते हैं। आप अगर ज्यूरिख जाएं तो लेक ज्यूरिख जरूर देखिएगा। इस नदी के किनारे से आपको स्विस एल्प के पहाड़ भी नजर आएंगे, जो स्विट्जरलैंड के सबसे ज्यादा फेमस माउंटेन हैं। और नेशनल म्यूजियम ऑफ ज्यूरिख में सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। आप इस शहर में 800 साल पुराना क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। इस शहर की गलियां तारीखी मंजर पेश करती हैं। आप जब भी बर्न में जाएं तो इसकी पार्लियामेंट बिल्डिंग जरूर देखिएगा, जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाई गई है। इस शहर के दरिया को अगर ऊपर से देखा जाए तो बल खाता हुआ पूरे शहर में से गुजरता है और इसके इर्द गिर्द बहुत से घर मौजूद हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।